Well, it's International Yoga Day and I'm coming to you from Noida Stadium here in Sector 21, and you can see there's a huge gathering over here performing yoga on this day. And in fact, Union Minister Smriti Irani is also here with other senior leaders of the Bharatiya Janata Party. There is definitely energy over here. People have been lining up since morning, and in fact, people have gathered in very huge numbers to actually perform yoga, not only with the minister but with their fellows who stay in Noida. And in fact, these are the visuals coming in right now from Noida Stadium, which is located in Sector 21. Union Minister Smriti Irani is here, and in fact MP from this area Mahesh Sharma is also here. What I can tell you looking at this gathering is that people from all walks of life, from all age groups are here, be it youngsters, be it children, be it people of age around 40. So everyone is there, and in fact they are taking part in this on this very day with sheer enthusiasm. And in fact, this is the 9th edition of International Yoga Day, which we are celebrating across the globe. Prime Minister Narendra Modi is in America, and in fact this is the larger messaging today what India as a nation has given to the world. And in fact, theme of this year is Vasudhaiv Kutumbakam, which means that the world is one family. And in fact, these visuals actually tell you this very story, that how the world is one family when people from different walks of life, from different backgrounds come together to perform yoga. And in fact, this is not just about yoga, this is not just about practicing yoga or some exercise. This is more about coming together and performing one such art which is actually now very prominent across the globe, where people are taking interest in very huge numbers. We have seen visuals coming in from across the globe where people are taking part. It's not only Indian diaspora, it's people from each and every community, religion, and each and every ethnicity coming together and performing yoga together. This year's theme remains to be Vasudhaiv Kutumbakam, which I mentioned, and in fact the message is very clear. With such initiatives and with such soft power, the world can come together. योगा का मतलब ये है कि हमारे मानसिक, आत्मिक और शारीरिक विकास के लिए योगा होता है। इनका एकीकृत करना ही योगा है, क्योंकि मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है। क्योंकि हमकी मन जो है हमारा बड़ा चंचल होता है, उसको रोकथाम और शारीरिक विकास के लिए आज के टाइम में ये योग बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग कर रहे हैं योग और प्राणायाम, ये तो योगा का एक छोटा पार्ट है, क्योंकि योग के 8 अंग हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, धारणा। ये धारणा समाधि लास्ट वो है। तो ये योगी के, लेकिन आम पब्लिक के लिए आज के टाइम में जो हमारी स्ट्रेस फुल लाइफ है, इसमें भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अगर हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी ऑक्सीजन का इंटेक जिसे प्राणायाम हम कहते हैं, उसका अगर हम प्रॉपर बनाए रखें, बॉडी फंक्शनिंग अपनी प्रॉपर बनाए रखें, अपने मन को शांत रखें और गलत कामों से बचें, तो यही योग है। तो अच्छा, आप भी आए हो योगा करने, कुछ बोलोगे योगा डे पे? आप बोलोगे कुछ योगा डे पे? मैं आपको बताऊं, मैं MD आयुर्वेद में हूं और योगा में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, और मैं पिछले 20-25 साल से योगा कराता भी हूं। मरीजों पे भी उसका वो अपना प्रयोग करता हूं, और जगह जगह उस पर मैं अपना योगा का वो करता हूं। तो ये जो है योग की मैंने जो आपको परिभाषा बताई है कि आत्मा, मन और शारीरिक बैलेंस बनाए रखना ही आज के टाइम में योगा है। Well, you can see like this is the message coming in from the generation, from the older generation, if I can say, I may say. We have some kids also who have come here to actually perform yoga. आपको योगा करना पसंद है? हाँ। क्या लगता है आपको, क्यों योगा किया जाता है, या आज का दिन क्यों आप योगा से क्या अच्छा लगता है? योगा से हम फ्रेश रहते हैं, दिन अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, शांत रहते हैं हम, और योगा से हमें ताकत भी आती है और पूरा दिन अच्छा रहता है। कितनी एज है आपकी? मेरी 11। योगा का महत्व तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, और प्राचीन काल से ये हमारी जो है योगा का महत्व रहा है। मगर बीच में लोगों ने इस तरह ध्यान कम दिया, और गलत खान पान की वजह से लोगों का जब स्वास्थ्य खराब होने लगा तो इस ओर ध्यान दिया गया, और हमारी सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया। तो आज के युग में बहुत ज्यादा जिस तरह से बच्चों का रहन सहन है, रात को जागना है, दिन भर सोना है, उसके लिए में अगर योगा का इस्तेमाल नहीं करने के तो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा।
तो इस परिप्रेक्ष्य में मतलब योगा का मतलब ये नहीं कि हम सब लोग मिलकर साथ करें, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए अगर ये है ना कि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, तो योगा का तो बहुत ज्यादा महत्व है और इसमें कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई जिम में जाते हैं तो खर्च भी करना पड़ता है, इसमें तो कोई खर्च ही नहीं होता है, कोई एसिड्स इसकी नहीं है सिवाय इसके कि आप अपनी एक्सरसाइज कुछ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतीयों का ये गौरव है कि यूएन हेडक्वार्टर्स में हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास के माध्यम से हिंदुस्तान की विरासत और विकास के पथ पर अग्रसर भारत, इनका संदेश पूरे विश्व को पुनः दे पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को और विश्व के सभी योगा प्रेमियों को हम सब हिंदुस्तानी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।